Hello everyone, welcome to ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab. As you know that ISF College of Pharmacy is conducting an online lecture series. Into it, various pharmaceutical scientists, researchers, influencers, orators are coming onto this platform and delivering their expertise and area of interest in pharmaceutical sciences. This lecture series is conducted by Internal Quality Assurance Cell of ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab. In the similar context, today we have very famous pharmaceutical scientist, Professor Vikas Pandey sir, with us. I welcome on behalf of ISF College of Pharmacy to Professor Vikas Pandey sir. Sir is working right now as Professor and Principal Department of Pharmacy, Mangalayatan University, Jabalpur, Madhya Pradesh. He is working extensively in drug delivery and nanotechnology laboratory in the Department of Pharmacy, MU, Jabalpur, Madhya Pradesh. If I talk about the academic voyages about Sir, Sir is serving as pharmaceutical sciences for last 1.5 decades. He has published more than 31 national, 14 international research and review articles in various journals. Dr. Pandey has published 5 books, 11 book chapters in international books. Sir has granted with 5 patents, 47 postgraduate students has been got guidance from Honorable Sir. Dr. Pandey has participated in 55 national and international conferences. Dr. Pandey is fellow member of SAS Society, life member of APTI and AP. Sir has delivered expert lecture series in more than 15 workshops, FDPs, and training programs. Dr. Pandey is editorial board member of General JMPAS, ambassador of Bentham Sciences South Asia region. Dr. Vikas Pandey is creator of popular YouTube series that is VP Mantra, Pharma Friend, Dr. Vikas Pharmacy, which has millions of subscribers, and he is very famous amongst pharma stockholders, including students, critics, academicians, researchers, and general peoples. So, without taking much knowledge, but much time, I would like to invite Professor Pandey. All stage is yours, sir. Once again, welcome to ISF College of Pharmacy. Please start your session, sir. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Dr. Vikas, thanks. I extend my sincere thanks to ISF College of Pharmacy, one of the premier institute in India serving academics at its best from last many years. I extend my thank to GD Gupta sir, Director ISF College, Professor Narang, Professor Mehan, and Professor Saurabh Kose for giving me this valuable opportunity to share my experience and thoughts on my whatever I can say about what I've little gained in so far in the field of pharmacy. There's still a lot to learn, and whatever things said by Professor Saurav, it is all his greatness about him. But still, I'm trying to learn and share and nourish in the field of pharmacy. Without much wasting any time, I just want to share about a brief nutshell things about the presentation which I'm going to deliver is about the pharmacovigilance and pharmacist. Basically, it's a really matter of great joy and happiness that this lecture and presentation is going to be shared and cater on a wider platform where all the audience all over the India, all across the nation can watch it out. And since keeping in view the very much important audience that is the students, especially those who have entered in the field of pharmacy in the very beginning. So such kind of words that is pharmacovigilance and all this seems to be quite new for them. So I will try to share my things as simple as possible in both that is Hindi language and English language so that each and every student can understand and connect with the topic and also get the knowledge about the importance and significance of such a field, important field that is pharmacovigilance. So I shall start now with my presentation. So
I just would like to ask from Professor Saurabh that, sir, everything is right in line now? Yes, sir. You are audible. Slides are visible. Yes. Okay, thank you, sir. So, pharmacist and pharmacovigilance, that is encouraging report of ADR. This definitely these such kind of terms are very much familiar with all the people who are involved in pharmacy from over a longer period of time. But since students who have entered recently in the field, so for them, I just wanted to tell in Hindi that pharmacist और फार्माकोविजिलेंस दोनों ही जो शब्द हैं ये एक किस्म का ब्रिज है, इसे हम पुल भी कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं, जो कि आम जनता और जो कंपनियां दवा निर्माता हैं उनके बीच का, जो सभी को सर्व करते हैं। एडीआर क्या है इस प्रेजेंटेशन के आगे के भाग में हम जरूर समझेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि एडीआर एडवर्स रिएक्शन क्या है। देखिए, सिंपल वे में अगर हम समझें कि अगर कोई इंसान जो भी नॉर्मल है, जो कि फार्मेसी वैश्विक जीव विज्ञान से उतना भली भांति परिचित नहीं है, और वो कोई एक दवा अब ग्रहण करता है और उसे किस जो मर्ज है, जो तकलीफ है, उससे निजात मिलती है, लेकिन उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे हम फार्मास्यूटिकल्स या फार्माकोलॉजी की भाषा में साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। मतलब किसी दवा को ग्रहण करने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसने एंटीबायोटिक खाई हुई है। मैं इस तरह का प्रेजेंटेशन कोशिश कर रहा हूं ताकि जब ये वाइडर प्लेटफॉर्म पर ये लेक्चर जाए तो हर प्रकार का व्यक्ति जो फार्मेसी से संबंधित है, नहीं है, छात्र हैं जो नए नए प्रवेश करे हैं, वो बड़ी ही आसानी से इसे समझ पाएं और समझने से ज्यादा आत्मसात कर पाएं। तो साइड इफेक्ट मीन्स अगर एंटीबायोटिक हमने खाई, हमने किसी प्रॉब्लम के लिए, वो ठीक हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग जो होती है, इसे साइड इफेक्ट बोलते हैं। साइड इफेक्ट्स का एक और प्रारूप होता है, तो उसे एडवर्स इफेक्ट कहा जाता है, जो ज्यादा गंभीर होता है। और अमूमन ऐसा होता है कि दवाओं के सेवन के बाद या किसी भी वजह से, ट्रीटमेंट की किसी लाइन की वजह से, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ एक्शन की वजह से, मल्टी ड्रग थेरेपी की वजह से ऐसा कोई दुष्प्रभाव शरीर पर आ जाना जिससे कि निजात पाना लगभग असंभव हो जाए, इसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है। अब स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि एप्रिशिएबल हार्मफुल अनप्लेजेंट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरवेंशन रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, ये इसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड परिभाषा है। तो आशा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप समझ पाए होंगे कि बेसिकली ये क्या है। इसके बाद एक चीज को इससे कनेक्ट करेंगे कि एज पर दी जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे कि कहा जाता है कि भारत में 60 से 65 आज भी 60 से 65% से ज्यादा आबादी जो है वो रूरल एरियाज, दैट इज ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और जो भी चीजें मुहैया होनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड चीजें बहुत पुअर है। तो ऐसे में उन तक इस तरह की जानकारी पहुंच पाना कम होता है, लेकिन फिर भी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद WHO के बारे में सभी लोग ने जाना समझा। उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 5 बिलियन से भी ज्यादा जनता ऐसी है जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेती है। अब यहाँ पर मैं एक बात साफ करना चाहूंगा मेरे सभी दर्शकों को और सभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनको, कि प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन यहाँ से ये मतलब नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हुई है, आप डॉक्टर के पास गए हैं और उस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने आपको दवाएं एक पर्चे पर लिख दी, आपने 3 दिन तक अपना डोज लिया और उसके बाद आप ठीक हो गए। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस, लॉन्ग टर्म डिजीज, जैसे कि भारत में उच्च रक्तचाप और मधुमेह को राष्ट्रीय बीमारी घोषित किया गया है। और ये बीमारियां ऐसी हैं, ये मतलब बीमारी नहीं बोल सकते, एज पर जो फिजिशियंस हैं, रिनोन्ड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ डिरेलमेंट ऑफ द ऑर्गन। लेकिन ये सत्य है कि इस तरह की समस्या अगर शरीर में आती है तो ये इंसान के साथ ही जाती है, मतलब उसे जिंदगी भर दवाओं का सेवन करना पड़ता है। इससे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। आशा है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस समूचे विश्व में लोग ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं रासायनिक क्रिया, रिएक्शंस, जिसे हम क्या साइड इफेक्ट भी पहले नाम देते हैं, और वो होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि जैसे किसी
मरीज को अगर मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, तो उसने दवाएं लेना शुरू किया, तो समय के साथ साथ दवाएं चेंज भी होती हैं क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप शरीर में होता है। तो ऐसे में साइड इफेक्ट्स का एडवर्स इफेक्ट में कन्वर्शन होना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट, मतलब इसको हम फर्क एक रूप में समझेंगे, वो ये कि सबसे बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन द साइड एंड एडवर्स इफेक्ट, वो ये सिंपल सा, साइड इफेक्ट समय के साथ साथ ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, बट एडवर्स इफेक्ट इरिवर्सिबल होता है बेसिकली। लाइक फॉर एन एग्जांपल कि एस्प्रिन अगर कोई मरीज खा रहा है, एस्प्रिन ले रहा है, तो नोज ब्लीडिंग, ब्रूजिंग एक कॉमन चीज है, बट एलोपिरिनॉल जैसी ड्रग्स हैं जो कि स्किन, as per the latest exploratory findings, it is reported that the long-term usage of allopurinol may result into severe skin problem, including psoriasis. So this is एक एग्जाम्पल था, ये उदाहरण है जो कि दर्शाता है साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बीच में। साइड इफेक्ट हार्मफुल होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, पर एडवर्स इफेक्ट अनडिजायरेबल होते हैं। एक बार फिर से हम अपने छात्रों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, जब आप वैज्ञिक जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे एक विषय है फार्माकोलॉजी। उसकी जो किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि दवा की मतलब जो कार्य प्रणाली है, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी प्रेषित किए जाते हैं, किताब में प्रिंट किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रायल्स, ड्यूरिंग उनके जो स्टेज होती है प्रयोग की, उस समय पता चल जाता है कि इस दवा से ये साइड इफेक्ट होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इसलिए हर जगह जो प्रिंट मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, बुक्स है, जर्नल्स हैं, सभी पे प्रेषित किया जाता है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट कभी भी प्रेषित नहीं किया जाता क्योंकि वो अनडिजायरेबल होता है और मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन डेंजरस और डेंजर जो खतरा है उसके आधार पे देखें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये एक बेसिक फर्क है साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के रूप में। पैथोजेनेसिस को देखेंगे तो एडीआर जो है उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ 5 पार्ट्स। किसी दवा का ओवरडोज की वजह से, इंटॉलरेंस की वजह से। इंटॉलरेंस को आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रायल की स्टेज पर 5 पेशेंट्स को लिया जाए जिन्हें सब्जेक्ट्स बोला जाता है और उनके ऊपर एक मेडिकेशन का प्रयोग किया जाए, सभी को एक सी मेडिसिन दिया जाए, तो सबकी बॉडी सिमिलर रिस्पॉन्स नहीं करेगी एज पर द बैकग्राउंड ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, वी कैन से डायनामिक्स एंड काइनेटिक्स। तो दैट इज द डिपेंडेंट कि हर इंसान की जो शरीर है वो दवाओं को अलग अलग रूप से ग्रहण करते हुए अलग अलग रिस्पॉन्स प्रस्तुत करती है। सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं आइडियोसिंक्रेसी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं लोगों में, पर जब ये गंभीर रूप ले लेते हैं तो उसे मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस की दुनिया में एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का नाम दिया जाता है। मूल रूप से एडीआर 2 प्रकार के हैं, ऑगमेंटेड और बिजार। बिजार यानी कि अजीब, और ऑगमेंटेड यानी कि कहीं ना कहीं जो एक कैलकुलेटिव है या फिर जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बिजार का मतलब ये है कि सडनली कुछ ऐसा रिएक्शन या इफेक्ट शरीर में पाए जाना जिसकी कभी कहीं से भी स्टार्ट एंड तक कल्पना नहीं की गई थी। यहाँ पर जो मैंने बात कही थी कि साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के डिफरेंस के बारे में, वहाँ मैं एक बार बताना चाहूँगा उन दर्शकों के लिए जो शायद नहीं जानते कि एक दवा को मार्केट में आने में, मतलब उसकी खोज से लेकर के मार्केट में आने तक लगभग 14 साल का सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान ऐसे कई स्टेजेस पार करने पड़ते हैं और जिसमें कि एक छोटे समूह पेशेंट से लेकर के फिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिसे क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है, और जिसके फाइनली एक आउटकम के बाद, पास होने के बाद मार्केट में आया जाता है। सो ऑगमेंटेड की बात करें तो ऑगमेंटेड जनरली एक सिंपल वे में हम समझेंगे कि जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन से संबंधित अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अंदाजा रहता है और इसलिए स्पेशल वार्निंग, चेतावनी के साथ उन दवाओं को मार्केट में लाया जाता है। एक एग्जांपल समझेंगे
अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे बहुत सारी एंटीवायरल दवाओं का सेवन किया गया। उसके पहले स्वाइन फ्लू, जीका वायरस एक्सेट्रा बहुत सारे इस तरह से वायरल अटैक्स हुए, जिससे ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल्स को लिया गया मरीजों में। तो वो एंटीवायरल्स की जो फार्माकोलॉजी है वो ये कि आप उस पेशेंट को वो वायरस से निजात बेशक दिला देगी, लेकिन उसका जो एडीएमई प्रोसेस है, उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है, या फिर उसे हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं कि लीवर को जो पचाने के लिए भोजन के साथ साथ दवाओं का भी प्रहार झेलना पड़ता है। तो कुछ ऐसे बहुत सारी एंटीवायरल्स हैं जिसमें कि पेशेंट वायरस से तो निजात पा जाता है, लेकिन बहुत सीवियर लेवल तक लीवर को डैमेज पाता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक परिचित थे, उन्हें स्वाइन फ्लू का अटैक हुआ, ओसेल्टिमेविर उन्हें लिखी गई और 5 दिन तक उन्हें वो दवाएं लेना था, एक दवा 1 दिन में। तो 5 दिन उन्होंने एक टैबलेट खाई, तो आखिरी दिन तक वो पूरी तरह से स्वाइन फ्लू से क्योर हो गए, ठीक हो गए, लेकिन इन द एंड मोर देन 60% लीवर उनका डैमेज हो गया। तो जब ये जो मेडिकेशन है ये पूरी स्पेशल वार्निंग के साथ है, ये किसी भी रिटेल स्टोर में नहीं मिलते। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो संस्थान है वहाँ पर भी जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर हैं, फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, उनकी अनुमति के बाद ही इसे लिमिटेड डोज में दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सब कुछ ऑगमेंटेड एडीआर के अंतर्गत आती है, जिससे कि ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप आसानी से समझ सकें कि ऑगमेंटेड एडीआर क्या है बेसिकली। इसके बाद है बिजार, चूंकि अजीब, उसके कुछ एग्जांपल दैट इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, एक्यूट पोर्फायरिया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, और यूजुअली इस तरह की जो अनप्रेडिक्टेबल और हाईली डेंजरस रिजल्ट्स हैं वो बिजार के अंतर्गत आते हैं। मींस इनका कहीं की भी प्री कैलकुलेशन या प्री प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होता। और इसको एलैबोरेट करेंगे प्रकार में, तो टाइप सी से लेकर एफ तक है। टाइप सी मतलब कोई पेशेंट है तो डोज डिपेंडेंट है, उसकी वजह से रिएक्शंस होना, टाइम रिलेटेड एक्शंस होना। एक इसमें तो वैसे टार्डिव डिस्काइनेशिया, एंटीसाइकोटिक्स बड़े बहुत शायद टीडियस या कॉम्प्लिकेटेड प्रतीत हो रहे होंगे। मैं बहुत सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का, वो किसी प्रकार की दवा ग्रहण कर रहा है, उसका रोज उसे समय से ही वो दवा लेनी है। तो अगर इन केस वो पेशेंट वो दवा भूल जाता है तो सडनली उसके ब्लड प्रेशर में बहुत डिस्टरबेंस आता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन के साथ साफ साफ ये दिया रहता है कि अगर आप स्किप कर गए हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, जब भी आपको याद आए, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप उसे परस्यू कर सकें, तुरंत उसे ग्रहण करें। विड्रॉल रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से संबंधित पेशेंट्स स्लीपिंग पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट्स तरह की कुछ मेडिकेशंस लेते हैं और उन्होंने रेगुलर लेनी होती है। तो अगर इस तरह की दवाएं अब अगर विड्रॉ होती हैं तो बहुत सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ, जो कि टाइप एफ है थेरेपी का, जहाँ पे किसी वजह से डिक्रीज क्लियरेंस होता है। मतलब मीन्स एक मल्टी ड्रग थेरेपी अगर हो, एक केस में अगर जो डॉक्टर है वो पेशेंट की मेडिसिन या फिर जो मेडिकल कंडीशन की हिस्ट्री अच्छी से ना समझ करके और उसे ठीक तरीके से परस्यू नहीं कर पाया और मेडिकेशंस उसको दे दिए, तो ऐसे में कुछ अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स होते हैं थेरेपी के। तो दिस कम्स अंडर दी टाइप एफ। इसके बाद मैनिफेस्टेशंस, यानी कि जो अभिव्यक्ति है उसमें लगभग सभी क्षेत्र आएंगे। मैं इन टर्म्स को ज़्यादा विस्तार में प्रस्तुत करना ज़रूरी नहीं समझूंगा। बाकी किडनी, लीवर, हमारे जो शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन्स के साथ साथ सभी जो हमारे पार्ट्स हैं वहाँ पर एडीआर कहीं पर भी इफेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात एक ये कि एडीआर और साइड इफेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने की हैं, वो एक आप सिंपल वे में समझेंगे। मैं उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ जो शायद फार्मेसी संबंधित नहीं है पर फिर भी जानना चाहेंगे कि एक सपोज किसी पेशेंट को किसी ऑर्गन में किसी स्थान पर कोई प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि उसे हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो वो पेशेंट सर दर्द की दवा खाता है, या फिर अगर उसे कहीं मसल स्प्रेन हुआ है या पेन है तो वो खा रहा है।
तो वो दवा जब वो ग्रहण करता है तो ओरल रूट से होते हुए, स्टमक से होते हुए ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचती है और वहां से उसे निजात मिलता है। लेकिन आप ये खुद कॉमन सेंस की बात समझ सकते हैं कि जहां जहां रक्त शरीर में जाता है वहां वहां दवा जाएगी, और जहां दवा का अपना कार्य नहीं करना है, जिसे साइट ऑफ एक्शन बोलते हैं, जहाँ रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं, तो दूसरे स्थान पर वो रिएक्शन तो बेशक करेगी, और इसीलिए साइड इफेक्ट्स आते हैं। और जब ये साइड इफेक्ट ज्यादा अपना बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं तो उसे एडीआर बोला जा सकता है। और फिर कुछ इस तरह की टर्म सामने आती हैं: न्यूरोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोसिटी, टेराटोजेनिसिटी, एक्सेट्रा। इन टर्म्स को आप पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिटेल बहुत मिलेगी। फिलहाल हम, जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा, कि मैं सिंपल से सिंपल प्रस्तुतिकरण के प्रयास में हूँ। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ एडीआर में आएंगे, कैसे एडीआर को डिटेक्ट किया जाता है। एक है कोहोर्ट स्टडी, इसके बाद केस कंट्रोल स्टडी, कंप्लीट ओरिएंटेड सिस्टम। ये तरीके हैं पता लगाने के एडीआर के। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक फॉर्म है, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग, जो कि रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म है। अभी तक हमने जाना कि एडीआर क्या है, और अगर एडीआर कहीं पाया जाता है, किसी क्लिनिक, किसी हॉस्पिटल या कहीं भी किसी, तो आम जनता से लेकर के हर इंसान इस तरह के फॉर्म के माध्यम से एडीआर को रिपोर्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर हमें किसी क्राइम के संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है तो एफआईआर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये फॉर्म है जो कि ईजिली अवेलेबल भी है। प्रोसेसिंग जो रिपोर्टिंग की है, सबसे पहले एडीआर उस निर्माता को बताया जाता है जहां से कंपनी से दवा बनाई गई है। इसके बाद आर्टिकल्स और सभी जगह कम्युनिटी में से स्प्रेड किया जाता है, ताकि इसकी जो जानकारी है, इसकी जो सूचना है, सब तक पहुंच सके। कुछ पॉपुलर केसेस जो एडीआर के हुए, उसमें एक कुछ उदाहरण है स्क्रीन पर आपको शायद क्लियर विजन ना मिले, मैं एग्जांपल आपके लिए बता देता हूं कि 1937 सल्फोनामाइड, फिर इसके बाद 2001। तो इसमें आप ये देखेंगे कि एडीआर इनके इतने गंभीर थे कि इन दवाओं को, इनका निर्माण से लेकर के इनका व्यवसाय, हर चीज मार्केट से विड्रॉ कर ली गई। विड्रॉल का मतलब होता है इन्हें बैन कर दिया गया। आप हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी मेडिकेशंस को बैन कर दिया जाता है। तो बैन का मतलब है कि विड्रॉल, अब वो मार्केट में नहीं रहेंगी। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देखें तो जो कुछ कफ सिरप चलते थे उसको भी विड्रॉ कर दिया गया, जिसमें कोरेक्स भी शामिल है। साथ ही साथ मधुमेह में के लिए पायोग्लिटाजोन जैसी दवाएं को भी विड्रॉ किया गया, क्योंकि इनसे पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट हो रहे थे, जो कि काफ़ी सालों के बाद आम जनता के रूप से सामने आए। इसके बाद यूसेज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि सीमित इसका इस्तेमाल चेतावनी के साथ दिया जाएगा, जैसे कि मैंने स्वाइन फ्लू की दवा एंटीवायरल का उदाहरण दिया। अब हम आते हैं अपने मुख्य शीर्षक पर, दैट इज दी फार्माकोविजिलेंस। इस टर्म को आप बहुत आसानी समझेंगे। फार्माको मतलब कि एक दवा, और विजिलेंस मतलब निगरानी रखना, कीप अवेक, अलर्ट, कीप वॉच, और द प्रोसेस ऑफ पेइंग क्लोज एंड कंटिन्यूस अटेंशन। एग्जांपल ये कि जैसे आपके घर में या आपके किसी ऑफिस के प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो वो भी एक विजिलेंस का काम कर रहा है। तो दवाओं के निर्माण, खोज, निर्माण से लेकर के मनुष्यों के इस्तेमाल, उनके निर्यात, उनका सब कुछ, हर चीज से रिलेटेड कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो उसके ऊपर निगरानी रखना, और उस पर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे संबंधित एक्शन लेना, ये फार्माकोविजिलेंस विभाग का काम होता है। एक सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि फार्माकोविजिलेंस बेसिकली किसी फार्मास्यूटिकल एरिया, उसका डोमेन, उसके सेक्टर का विभाग नहीं है। जैसे कि आप कंपनी में जानते होंगे कि प्रोडक्शन में दवाओं का निर्माण होता है, रिसर्च में उसका डेवलपमेंट होता है। तो फार्माकोविजिलेंस बेसिकली टोटली, पूर्णतः जो तकनीक है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल आईटी जिसे हम बोलते हैं, उनका काम है। तो ऐसी कई जो आईटी कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेवाएं देती है। तो ये जो विभाग है, ये आईटी कंपनीज के अंदर बेस्ड होता है, सिचुएटेड होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स का मिलन या फिर उनका ब्लेंड को फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। WHO की डेफिनेशन के अनुसार, साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट
और पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोला गया है। आखिर क्या जरूरत है? सबसे पहले फार्माको विजिलेंस की। क्यों ऐसा करना? क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इस तरह की सर्विसेज अगर जब करनी पड़ेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी होता है, IT इन्वॉल्व होती है, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, अगर क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान पर्याप्त एक प्रमाण सेफ्टी से संबंधित, एक्सपेरिमेंट से संबंधित अगर नहीं है और जुटा पा रहे हैं, या फिर एक आप रीजन वन को मैं और भी सिंपल करके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हाल ही में जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स का निर्माण भारत में किया गया, उस समय पे पूरा विश्व इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा था कि इतना वक्त नहीं था कि वैक्सीन्स का ट्रायल कंप्लीट हो पाए, क्योंकि बहुत जल्दी थी, समय कम था, जान बचाना था, इसलिए फिर बहुत फास्ट रूप से वैक्सीन्स को मार्केट तक लाया गया। बेशक ये बहुत गर्व और गौरव की बात है हमारे समूचे भारत देश के लिए कि हम सबसे बड़े निर्माता और निर्यातक बने वैक्सीन्स के मामले में। तो अगर सफिशिएंट डेटा नहीं है एक्सपेरिमेंट संबंधित, तो फार्माको विजिलेंस दवा के या किसी भी दवा से संबंधित किसी प्रकार का जो भी प्रोडक्ट है, उसके मार्केट में आने के बाद कम से कम उसके ऊपर निगरानी रख के पता कर सके, ताकि अगर कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसे रोकथाम किया जा सके। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन के संबंधित बहुत लोगों में ये सवाल उठे कि कोविड-19 की वजह से कार्डियक अरेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं। रीजन 2 एक बहुत ही अच्छी बात WHO ने 2005 में प्रेषित की थी कि किसी भी मरीज का जो मृत्यु है वो बीमारी की वजह से स्वीकृत है, लेकिन किसी दवा के सेवन की वजह से मृत्यु अत्यंत निंदनीय है। इसलिए हर हाल में दवाएं जो इंसान के ट्रीटमेंट के लिए, जान बचाने के लिए बनाई गई, वो कम से कम इस तरह के एडवर्स इफेक्ट ना सामने आए। दूसरा ये कि एडवर्स रिएक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं। अगर उनके ऊपर पहले ही प्रिवेंशन से संबंधित निगरानी रखी जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान को बचाया जा सकता है। 1959 से 61 थैलिडोमाइड के सभी जानते हैं, फोकोमेलिया जो कंजेनिटल लिम्ब डिफेक्ट्स नवजात शिशु में पाए गए। ये एक मेडिसिन है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती थी, उनकी इम्यूनिटी या फिर जो भी उनकी उसके लिए बॉडी की फिजियोलॉजी को बेटर रखने के लिए। बट ये एडवर्स रिएक्शन की वजह से जो नवजात बेबी होते थे वो इस तरह से प्रॉब्लम। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट popular, most critical examples and cases from the world of ADR, which has been reported for 3 consecutive years, that is 1959, 1961. इसके बाद प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं, ये स्क्रीन पर आपके सामने। फेनफोर्मिन, रोफेकॉक्सिब, वेलोप्राइड, डोसिग्लिटाजोन इज वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम्पल एंटी डायबिटिक ड्रग, जिसमें कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने को मिली पेशेंट्स में। क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं फार्माकोविजिलेंस के? सबसे पहले कि किसी भी दवा के संबंधित कोई पहले से एरिया रिपोर्टेड है तो क्या क्या उसमें प्रणाली रही, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया, किस तरह के पेशेंट में पाया गया, क्या उनकी एज थी, क्या उनका सेक्स, क्या उनकी स्पीड भी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब कुछ डिटेल्स को रिकॉर्ड करना। इसके बाद अगर किसी प्रकार का रिस्क मेडिसिन में दिखाई दे रहा है तो क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, या तो उसे बैन करने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा हो तो बैन करना, या तो फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग, एक्सिपिएंट्स या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से संबंधित, या फिर डोजेज फॉर्म, जो भी एक दवा के प्रोडक्ट से संबंधित होता है, क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ हो सके। इसको पॉइंट को मैं एक और एग्जांपल से देना चाहूँगा कि कोविड-19 के सिम्टम्स में जनरली जो भी एलर्जिक रूप में कह सकते हैं, जब गले में खराश या गले में इन्फेक्शन महसूस होता है, तो आम जनता जिन्हें जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, जो मतलब उतना लिटरेट नहीं है,
या उतने इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो एक बहुत ही ओटीपी टाइप की बना ली है, जबकि ओटीपी ओटीसी, आई एम सॉरी, ओटीसी ड्रग नहीं है, ओवर द काउंटर नहीं है, एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। तो ऐसी बहुत बड़ी पब्लिक थी जिन्होंने इस बात के डर से कि हमें कोविड शायद हो गया है तो हम एंटीबायोटिक से बच जाएंगे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा सेवन कर लिया कि एक एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट को उन्होंने एक दिन में 4-4, 5-5 तक खा ली गई। ये रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित मेडिकल कॉलेज एवं विक्टोरिया हॉस्पिटल के वार्ड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ज़बरदस्त जो पेट की गड़बड़ी है उसकी वजह से भर्ती हुए, जबकि उन्हें कोविड नहीं था। और पाया गया कि उन्होंने इस तरह से लापरवाही करके एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवा का सेवन करके यहाँ पहुंच गए। उन्हें कोविड था नहीं, और पता चला कि जब वो इस वजह से भर्ती हुए तो वहां पे जब हॉस्पिटल में पहुंच गए तो वहां रिस्क की वजह से उन्हें कोविड हो गया। इस तरह का भी है। तो अगर ये जानकारी आम जनता तक अच्छी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा दी जाए, फार्मासिस्ट की द्वारा दी जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फार्मासिस्ट एक दुकान पर होता है, जहाँ जो एक दुकान एक ऐसा स्थल होता है जहाँ आम जनता सामने आती है फार्मासिस्ट के। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो लोग ये सब जानकारी ठीक से अगर आम जनता को दें तो गंभीर समस्याओं को बचाया जा सकता है। और यही कुछ एक उद्देश्यों में से एक है फार्माकोविजिलेंस के। फार्माकोविजिलेंस में कौन कौन शामिल हैं? फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, ट्रेडिशनल हीलर्स। ट्रेडिशनल हीलर मतलब जो लोग और भी पद्धतियां अपनाते हैं उपचार के लिए, वो भी। हेल्थ वर्कर्स, पेशेंट्स में पेशेंट्स भी डेफिनेटली बहुत बड़ा और अहम रोल निभाते हैं फार्माकोविजिलेंस की मदद करने के लिए। फार्मासिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि फार्मासिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दवा निर्माता कंपनी, मरीज, आम जनता, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इन सबको जोड़ता है। ये वो धागा है वो जो कि हर तरह के मोती को पिरोता है। और फार्मासिस्ट का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फार्मेसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करे हुए छात्र और जो भी लोग वैज्ञिक जीव विज्ञान में संलग्न हैं, उनसे जुड़े हैं, उनके पास सबसे बड़ी एक उपलब्धि होती है कि वो दवाओं की भी जानकारी अच्छी तरह रखते हैं, साथ ही साथ फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, फार्माकोलॉजी, थेरापेटिक्स, इसकी भी जानकारी रखते हैं। तो सभी पार्टनर्स में से फार्मासिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक डॉक्टर को अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर एमडी इन मेडिसिन को हम छोड़ दें तो बाकी डॉक्टर्स अपनी फिजियोलॉजी पे फोकस्ड होते हैं और मेडिकेशंस, उनका जो विभाग है डेफिनेटली पोटेंशियल है, पर फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे अपने पाठ्यक्रम में, अपनी पूरी पढ़ाई में वो जो ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में फार्माकोविजिलेंस जैसी जो विभाग है, जिनका उद्देश्य है एडीआर को देखना, पाना, जानकारी लेना, उसमें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फार्माकोविजिलेंस के जो आउटकम्स हैं, मतलब उनकी कार्रवाई होने के बाद, वो है कि किसी दवा का रेस्ट्रिक्शन करना, डोज चेंज करना, कोई वार्निंग, चेतावनी देना, और किस दवाओं को ओटीसी की श्रेणी में रखा जाएगा। ओटीसी का मतलब कि बिना डॉक्टर के पर्चे से मरीज दवा डायरेक्टली खरीद सकता है, और किन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। ये सारी चीज़ें कुछ उसके इम्पॉर्टेंट रोल हैं फार्माकोविजिलेंस के, जो कि आम जनता की मदद करते हैं। फार्माकोविजिलेंस कैसे कार्य करता है, सिंपल वे में समझें आप इसको। जो सामने चार्ट में दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसको मैं सिंपल वे में कर देता हूँ कि आपके शहर, आपके गांव में कोई अस्पताल में अगर किसी प्रकार की एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसी मरीज में देखा गया, शायद जो पहले कभी देखा नहीं गया, तो वहाँ से कोई आम जनता का इंसान या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर फार्मासिस्ट या कोई भी, तो वो व्यक्ति स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, लिटरेचर, क्लिनिकल ट्रायल, रेगुलेटरी प्रोस्पेक्ट, लाइसेंस पार्टनर, ये सब लोग फार्माकोविजिलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रायज, डेटा एंट्री, क्वेरी प्रोसेस एंड केस क्लोजर। I just take a break.
So that is the ICSR processing during the clinical trials inquiry. तो इस तरह की जानकारी को एकत्र करके फार्माकोविजिलेंस तक पहुंचती है। उसके बाद वो पूरी डिटेल्स निकालते हैं कि कहाँ से एडीआर रिपोर्ट हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए क्या एक्शंस लिए जाएं, और फिर सब कुछ पाने जाने के बाद फिर वो निर्माता को रिपोर्ट करते हैं कि आपकी जो दवा मार्केट में गई है उससे संबंधित ये समस्याएं आ रही हैं। इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में आप समझेंगे जब हम आगे की स्लाइड में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए एडीआर में? सबसे पहले कोई भी सस्पेक्टेड रिएक्शन है, अनएक्सपेक्टेड एडीआर है, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी है, ड्रग ड्रग फूड इंटरेक्शन है, एडीआर एसोसिएटेड विड्रॉल है, मेडिकेशन एरर, जैसा कि हमने प्रकार देखे थे एडीआर के क्लासिफिकेशन है वो है, लैक ऑफ एफिकेसी है। तो इन सब में इस तरह की चीजें रिपोर्ट होती हैं। देखिए एडीआर कोई ऐसा नहीं कि किसी आम जनता में नॉर्मल साइड इफेक्ट दे रहा है और वो एडीआर रिपोर्ट कर दे, ऐसा नहीं है। पूरा उसका पुष्टिकरण किया जाता है, अश्योरेंस किया जाता है कि ये एडीआर है कि नहीं है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है हम आगे की इसमें स्लाइड में देखेंगे। कौन रिपोर्ट कर सकता है? एवरीबडी, पेशेंट, रिलेटिव्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैन्युफैक्चरर, अथॉरिटीज। क्या इनिशिएटिव्स हैं? एक बहुत ही अच्छी बात है भारत सरकार द्वारा ली गई है कि एडीआर को हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2013 में से लॉन्च किया गया 180018030024 के माध्यम से भी इसे रिपोर्ट किया जा सकता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडीआर पीवीए ऐप अवेलेबल है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं। कोई भी आप पर्सन देख के उसे एडीआर को रिपोर्ट कर सकता है। ये इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा एक इनिशिएटिव है। सो एक कैसे किया जाएगा उसको हम देखेंगे। एक नारंजोस एल्गोरिथम है जिसमें कि कुछ प्रश्नावली होती है और उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उनको 3 भागों में बांटा गया है, हाँ, नहीं या पता नहीं। तो एडीआर की पुष्टिकरण के लिए नारंजोस एल्गोरिथम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके क्वेश्चंस का जो स्कोर रिजल्ट है ये सुनिश्चित करता है कि सच में ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या नहीं है। कहने का मतलब ये कि कोई दवा का सेवन एक पब्लिक कर रही है, कोई दवा मार्केट में नई आई है और उसका वो सेवन कर रही है, तो साइड इफेक्ट्स सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो साइड इफेक्ट्स क्या इतने गंभीर हैं कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या एक सिंपल साइड इफेक्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स उन्हें जो ले रहा है, जो उन्हें ग्रहण कर रहा है, उनके साथ कोई समस्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेशेंट के बॉडी में बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स की वजह से इंटरेक्शन हो रहा हो? जैसे बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनके सेवन से संबंधित स्पेशल वार्निंग होती है कि इन दवाओं के सेवन के समय अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना किया जाए। तो क्या उस वजह से तो नहीं? तो इसलिए इस सब चीजों को देखते हुए ये क्वेश्चनियर को तैयार किया गया है और फिर इसका जो स्कोर है ये बताता है कि ये एडीआर है या नहीं। तो नारंजोस एल्गोरिथम के रिजल्ट्स के अनुसार अगर 9+ स्कोर है तो 100% ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, 5 से 8 है तो प्रोबेबल यानी हो सकता है, 1 से 4 है तो पॉसिबल है और 0 है तो एडीआर। तो 0 से लेकर के 4 तक की जो श्रेणी है उसमें फार्माकोविजिलेंस विभाग एडीआर के लिए किसी भी प्रकार की गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन 5 से लेकर के 9 के स्कोर में फिर आगे प्रोसेस किया जाता है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं कि दवा के मैन्युफैक्चरिंग, इनके बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड पेशेंट यूसेज से संबंधित क्या हमें एक्शंस लेने चाहिए। सो फाइनल मैसेज के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि फार्माकोविजिलेंस एक डायनामिक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक फील्ड है। एडीआर रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत है और वेस्टर्न कंट्रीज में एडीआर शुरू हुआ मतलब फार्माकोविजिलेंस, और धीरे धीरे भारत में भी बहुत अच्छे तरीके से फार्माकोविजिलेंस की सेवाएं संचालित है। जो हमारे जो छात्र हैं मतलब जो फार्मेसी फील्ड में आए हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि फार्माकोविजिलेंस भी एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहकर दवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त एकत्रित करके पेशेंट्स और मरीजों की मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, समाज सोसाइटी में सेवा करना चाहते हैं और अपने कैरियर में भी अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं, फार्माकोविजिलेंस एक बहुत ही अच्छा एक क्षेत्र है।
सो इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि ये आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं ISF कॉलेज अगेन एंड IQAC सेल सभी को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत बहुत नमस्कार अभिवादन करूंगा आदरणीय ऑनरेबल GD गुप्ता सर का, जो कि वैज्ञानिक जीव विज्ञान के क्षेत्र वेलकम में। डॉक्टर विकास पांडे जी, वेलकम। नमस्कार नमस्कार सर, आपके आशीर्वाद का सदैव आकांक्षी हूँ सर, और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज अपनी बातें शेयर करने का, साझा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सौरभ कोसे सर का, जिनके माध्यम से इतना सुचारू रूप से ये सीरीज को संचालित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you विकास जी, because I was late to attend your talk, लेकिन मैं जहाँ तक अनुभव कर सकता हूँ कि आप बहुत ही गंभीर, विचारशील और अपनी बात को गंभीरता से रखने वाले व्यक्तित्व को रखते हैं। So I hope that your talk and your valuable suggestion, they all will be the helpful to the society. And no doubt, this ISF dialogue series, purpose behind of this dialogue series to provide the actual and purify you have the content, show that individual person connect to you. Let us consider, so like Vikas Pandey ji, and if you can go through the YouTube channel, number of person come to know that. So if this is the some of the relationship with the professional of the person to person, and even that we are in the online mode, but I feel that how we connect to the Dr. Vikas ji, because we all are very near to each other even on the online mode like that. So this bonding is the required in those days, because nowadays we all are the highly professional and only few times we can connect to each other. So this is the right time and platform we can provide the information, knowledge, and we can also give some of the suggestion to our juniors as well as colleagues, and sometimes we can learn so many things from the junior, because I know that in education system nothing is junior and nothing is senior. Let us consider what you are knowing, it is not essential that I am knowing in that time, because at that time the technology now is the growing very fast. So youngsters are the very technocrat, very hardworking, and they are growing very fast on the fast movement. So that is why the young peoples are doing the so many things, and obviously some of the seniors peoples, they can provide the direction so that we can not to deviate our route. So thank you very much, and thanks to ISF Dialogue Series, and thanks Dr. Saurabh Koseji to provide this opportunity to me to interact with all of you. And I am also thankful ISF for provide this platform to interact of the some of the good peoples. Thank you very much and welcome you, Vikasi. Thank you very Thank you, much, sir. sir, for your words of wisdom and blessings. On behalf of ISF College of Pharmacy, IQAC Cell, I am thankful to Dr. Vikas Pandey, sir, who has taken really appreciate his time he has dedicated out of his busy schedule on a very short span of time. In future also, sir, we would like to have your lecture on various eminent topics of pharmacy. Once again, sir, I am thankful to you. You have spared your time. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.